Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture, we are discussing a very important topic on digital logics. Digital logic का हम एक बहुत ज़्यादा important topic इसमें study करने वाले हैं, that is K-map. K-map is very important to solve the Boolean expression. Boolean expression को solve करने के लिए आपका K-map को use किया जाता है. This is very efficient method टू सोल्व द बूलियन एक्सप्रेशन. बूलियन एक्सप्रेशंस को सोल्व करने के लिए के मैप बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स. सो नाउ लेट अस डिस्कस हाउ के मैप विल बी सोल्व. के मैप को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा विद सम एग्जाम्पल्स. हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और के मैप को सोल्व करेंगे. नाउ मूव टू अवर लेक्चर. दिस इज़ अवर first example. This is our first example. In this we are taking a soap form. We are taking a soap form. हमने एक soap form ले रखी है. How this soap form, I know that this is a soap form because we are taking a summation here. Summation का मतलब क्या होता है? सम करना. तो सम क्या है आपका? soap form है. And there are 3 literals. यहाँ पर आपके 3 literals are given. 3 literals are given in it, A, B and C. And these are the min terms because we know that in a SOAP form the terms are called as min term. जो आपको दी जाती हैं वो क्या है? min terms आपकी होती हैं. Now if you don't know about the min terms then you can watch the video on a SOAP and POS form. SOAP और POS form की वीडियो को आप देख सकते हैं. Now what is more about this? We have 3 inputs, 3 variables. हमारे पास 3 variables हैं. For 3 variables, how many inputs can be there? There can be 8 inputs. We can have these inputs. 8 inputs can be there. यहाँ पर आपकी 8 inputs आ सकती हैं. कौन कौन सी inputs हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These 8 inputs can be there for 3 variables. Now for 3 variables, how many to show the 3 variables, 8 inputs, we how many blocks we should required? We required 8 blocks. 8 input को रखना है तो हमें 8 blocks की requirement होगी. Now how can we do? We do 4 multiply by 2 और 2 by 4 की, या हम 2 tables ले सकते हैं, या तो 4 by 2 की table लो आप या 2 by 4 की table लो. So here I taking a table. In this table we take one literal or one variable in one side and 2 variables in one side. Now for BC there are 4 variables, 4 inputs can be there for BC. BC के लिए आपकी 4 inputs हो सकती हैं. कौन कौन सी? 0 0 0 1 and 1 0 and 1 1. These 4 inputs can be there for BC and there is only one input for 2 inputs for A. 0 and 1 can be possible. Now what this blocks represent? Here we take A and here we take BC. Now what this block represent? ये block क्या represent कर रहे हैं? Now what one more thing, 0 represent the bar of the, यानी negation of the note of the literal. जैसे कि अगर यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, that means it represent B dash and C dash. Here this is 0 1, so it represent B dash and C. Here this is 1 1, so it represent BC. क्योंकि 1 को हम B से लिखेंगे. इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन वॉच द पोस एंड सोप फॉर्म. पोस और सोप फॉर्म की वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको पता लगेगा. एंड दिस इज़ B एंड दिस इज़ C डैश. नाउ फॉर A दिस इज़ 0 सो A डैश एंड दिस इज़ 1 फॉर A सो इट A. नाउ व्हाट मोर अबाउट दिस? और ज़्यादा क्या हम इसके बारे में बोल सकते हैं? नाउ व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ दिस ब्लॉक्स? इन ब्लॉक्स की वैल्यूज़ क्या हैं? नाउ इफ़ वी टेक दिस ब्लॉक, अगर हम इस ब्लॉक को लेते हैं तो यहाँ पे आपके क्या हुआ? A B C. वी हैव A 0, B एंड C बोथ आर 0, सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स 0. सो दिस ब्लॉक रिप्रेजेंट 0 मिन टर्म. जो मिन टर्म आपकी 0 को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ द सेकंड विल बी, यहाँ पे A क्या है? 0. सेकंड के अंदर हम चेक करेंगे. A विल बी, A इज़ 0, A B C. तो A क्या है आपका? 0 है एंड B C. A 0 है आपका और B C क्या है? 0 और 1. तो B क्या है आपका? 0 एंड C विल बी 1. सो इट विल रिप्रेजेंट 1. ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1. बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लें, इट विल रिप्रेजेंट 1. सो दिस इज 1. नाउ दिस इज 1. नाउ फॉर द नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी? फॉर दिस ब्लॉक व्हाट दिस रिप्रेजेंट? दिस इज A इज 0. इस ब्लॉक के लिए A क्या है? 0 एंड B एंड C बोथ आर 1 एंड द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ दिस इज 3. ये आपका क्या हो गया? 3 आ गया. लेट दिस ब्लॉक रिप्रेजेंट 3.
नाउ फॉर दिस बी दिस ब्लॉक, फॉर दिस ब्लॉक ए इज 0, आपका ए क्या है 0, दिस इज ए इज 0, ये आपका क्या है 0। नाउ व्हाट अबाउट बी, बी इज 1, हेयर बी इज 1 एंड सी इज 0, सी आपका क्या है 0 एंड रिप्रेजेंट 2, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक दिस रिप्रेजेंट 4 बिकॉज ए इज 1 and both the B and C are 0 0, B and C are 0 0 and represent 4, this is 4। now this represent 5 and this represent 6 and this represent 7, you can know it about yourself। जैसे कि अगर इस ब्लॉक का देखना A is 1, A क्या है आपका 1 है, B and C both are 1 1, so this is 1 plus 2 plus 4 that will be 7, ये आपका क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। is that clear? now there is something you look that something is wrong in this, आपको लग रहा होगा कि कुछ wrong है, that this is 0 and this is 1, there should be 2, यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 3 and there is 2 and similarly here the 6 is placed after the 7, 6 को आपका 7 से 7 के बाद प्लेस किया गया है। now what is this, why this is so ये आपका कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, दिस इज द रूल ऑफ के मैप, के मैप का रूल है। के मैप का रूल क्या है, वाई दिस रूल इज अप्लीकेबल ऑन दिस, केवल इसके ऊपर हमने ये रूल अप्लीकेबल किया है या सभी ब्लॉक्स के ऊपर ये रूल अप्लीकेबल है? दिस रूल इज अप्लीकेबल टू ऑन ब्लॉक्स और एवरी ब्लॉक्स। नाउ वी कैन मूव टू, इफ़ वी मूव फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक, अगर हम क्या कर रहे हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर, ध्यान से समझना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जर्नली कोई बताता नहीं है इस पॉइंट को। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ दिस टर्म्स आर प्लेस्ड हेयर, क्यों रखी गई हैं ये टर्म्स यहाँ पर। तो के मैप का रूल क्या है, वेन एवर यू मूव फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक, जब आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर मूव करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, देयर कैन बी चेंज इन ओनली वन लिटरल, आपका केवल एक लिटरल आपका चेंज कर सकता है, अदरवाइज दो लिटरल्स आपके एक साथ चेंज नहीं कर सकते। फ्रॉम मूविंग वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर मूव करते हुए आपके दोनों लिटरल्स वेरी नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक ही मैक्सिमम लिटरल आपका वेरी कर सकता है। नाउ लुक एट दिस, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, लेट अस टेक दिस ब्लॉक, वी आर टेकिंग दिस ब्लॉक, हम इस ब्लॉक के अंदर हैं, दिस इज 0 0 एंड 0। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम दिस ब्लॉक टू दिस ब्लॉक, एडजेसेंट जो ब्लॉक है आपके, तो यहाँ पे क्या हुआ 0 0 एंड 1, दिस इज करेक्ट, ओनली वन लिटरल इज चेंज्ड हेयर, only one literal is changed here। now if we placed here, अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ this 1 0 is placed, if I placed here 1 0 then it is 1 0 0 1 0। अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा आपका 0 1 0 आपको मिलेगा। now look how many literals are changing, 0 is the same, 0 is the same। now this 0 changes to 0 to 1 and this 1 changes to 1 to 0, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द के मैप, ये के मैप के लिए पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन नॉट प्लेस 1 0 इन प्लेस ऑफ 1 1, यहाँ पर हम 1 0 का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? नाउ टेकिंग वन मोर टाइम, सो हेयर वी आर प्लेसिंग 1 1, हमने 1 0 का यूज़ नहीं किया, क्यों नहीं किया, इफ़ वी प्लेस हेयर 1 1, इफ़ वी प्लेस हेयर 1 0 देन दिस विल बी, ए क्या है आपका 0 है, एंड इफ़ वी प्लेस हेयर दिस 1 0 देयर आर 2 लिटरल्स चेंजिंग, 0 0 ये लिटरल आपका चेंज हो गया। नाउ दिस लिटरल, ये लिटरल चेंज नहीं हुआ, दिस लिटरल इज चेंज्ड, ये लिटरल आपका चेंज हो गया, एंड दिस लिटरल आल्सो चेंज्ड, 1 से 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, ये के मैप के लिए आपका पॉसिबल नहीं है। सो हम यहाँ पर आपका 1 0 पुट नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म, कि अगर हम क्या करते हैं 1 1 रखते हैं, इफ़ वी आर प्लेसिंग 1 1 देन इज देयर एनी चेंजिंग, लेट अस नाउ ए इज 0, ए क्या है आपका 0 एंड बी सी इज 1 1। नाउ यू कैन सी दैट ए आपका सेम है दोनों में, नाउ बी इज चेंजिंग, बी आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ सी इज सेम, सी आपका क्या है, सेम है। सो ओनली 1 लिटरल इज चेंजिंग, सो इट इज़ पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट, 0 1 1 से हम किसके ऊपर गए, नाउ वी आर, ए क्या है आपका, 0 ही है, 0 एंड देन 1 एंड देन 0, नाउ 0 इज सेम, ए इज सेम एंड बी इज आल्सो सेम, बी भी आपका सेम है, बट सी इज चेंजिंग, ओनली 1 लिटरल इज चेंजिंग हेयर, केवल एक लिटरल आपका चेंज हो रहा है, दैट्स वाई इट इज आल्सो पॉसिबल। सो दैट्स वाई वी प्लेस दिस टर्म्स लाइक दिस, हमने इसीलिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से रखा हुआ है। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1 1 प्लेस करना है और 1 0 बाद में, ये कोई ऐसे ही प्लेस नहीं किया गया। दिस इज़ द रूल ऑफ द के मैप, ये के मैप का रूल है कि आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर मूव करते हुए केवल एक ही लिटरल को चेंज कर सकते हो मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी आप देख लो, इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, अगर इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में मूव करते हो, द वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक इज 0 0 1 और इस ब्लॉक की वैल्यू क्या है 1 0 1। हेयर बी एंड सी आर सेम, बी और सी सेम है, केवल ए इज चेंजिंग, ओनली ए इज चेंजिंग हेयर, सो दिस इज आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। सो फॉर एवरी ब्लॉक दिस इज पॉसिबल, यू कैन चेक एवरी ब्लॉक दिस इज पॉसिबल, ये हर एक ब्लॉक के लिए पॉसिबल है। सो रिमाइंड इट वाई दिस वैल्यूज आर 0 0 0 1 1 1 0 0, वाई नॉट 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये ऐसे क्यों नहीं है, बिकॉज मूविंग फ्रॉम 1 टू अनदर ब्लॉक वी कैन चेंज ओनली 1 लिटरल, एक लिटरल को आपको चेंज करना है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू अवर मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नाउ दिस आर द मिन टर्म्स, दिस आर द मिन टर्म्स, ये आपकी मिन टर्म्स हैं, दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 3 दिस इज 2 4 5 7 एंड 6, दिस आर प्लेस्ड हेयर। नाउ दीज मिन टर्म्स, जो आपको मिन टर्म्स क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं, नाउ दीज मिन टर्म्स आर गिवन टू यू, ये आपको दी हुई हैं। नाउ वी विल प्लेस 1 by 1 दिस वैल्यूज, जो मिन टर्म आपको दे रखी हैं उसके लिए आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे एंड ऑल द अदर्स विल बी 0। तो यहाँ पे आपकी मिन टर्म 1, ये आपकी क्या है मिन टर्म, दिस इज द मिन टर्म प्रेजेंट इन बूलियन एक्सप्रेशन, सो इट विल बी रिटर्न 1 हेयर इन दिस ब्लॉक, जहाँ पर आपका 1 लिखा हुआ है वहाँ पे आप 1 लिख देंगे। नाउ दिस 3 थर्ड मिन टर्म इज आल्सो प्रेजेंट इन यूर बूलियन एक्सप्रेशन, सो वी विल राइट हेयर 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। सो इन स्वैप फॉर्म वी यूज मिन टर्म बाय 1, मिन टर्म को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट 6, 6 इज वेयर इज 6, 6 इज हेयर, सो वी विल प्लेस 1 हेयर। नाउ फॉर द 7 दिस इज 7, दिस इज योर 7। सो वी आर प्लेस्ड दिस टर्म्स, हमने यहाँ पर इन टर्म्स को प्लेस कर दिया। नाउ वट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू डू द पेयरिंग, हमें क्या करनी है पेयरिंग करनी है, क्या करनी है पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग क्या हो सकती है, पेयरिंग हो सकती है आपके 2 के मल्टीपल्स में, या तो 2 की पेयरिंग होगी, या किसकी पेयरिंग होगी 4 की पेयरिंग होगी, या किसकी पेयरिंग होगी 8 की पेयरिंग होगी, या फिर आपका सिंगल 1 रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या करना है पेयरिंग करनी है, 2 ब्लॉक्स की पेयरिंग करनी है। नाउ देर पहले आप देखेंगे कि आपकी सबसे बड़े 4 इकट्ठे पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है या नहीं, 4 का ब्लॉक बन रहा है या नहीं। अगर 4 का नहीं बन रहा है देन यू विल मूव टू 2। अगर 8 का पहले आप चेक करेंगे 8 का ब्लॉक बन रहा है कि नहीं, 8 का तो इसके अंदर बन सकता है, दिस ऑल विल बी आर मिन टर्म्स, अगर सारी की सारी मिन टर्म्स है। पहले आप 8 को चेक करेंगे, 8 का अगर ब्लॉक नहीं बन रहा है देन यू विल मूव टू 4 एंड देन यू विल मूव टू 2। इज दैट क्लियर? नाउ देयर आर ब्लॉक्स वी रिप्रेजेंट, दिस ब्लॉक कैन बी मेड, ये आपका 2 का एक ब्लॉक बन गया, ये पेयर बन गया आपका, ये पेयरिंग होगी। आप कैसे पेयरिंग कर सकते हैं, यू कैन डू द पेयरिंग लाइक दिस, यू कैन डू द पेयरिंग लाइक दिस, यू कैन डू पेयरिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस। आप क्या कर सकते हैं एक साथ एडजेसेंट ब्लॉक्स को ही आपको पेयर करना है, अदरवाइज आप पेयरिंग नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ द अदर ब्लॉक इज अदर पेयरिंग इज दिस, दिस विल बी ए अनदर पेयरिंग फॉर यू, ये आपकी दूसरी पेयरिंग हो गई। नाउ यू हैव 1 मोर पेयरिंग इन दिस, आपके पास यहाँ पर एक और पेयरिंग दिखाई दे रही है आपको, दिस पेयरिंग इज आल्सो देयर, ये पेयरिंग भी आपके पास है। नाउ यू विल नॉट टेक दिस, आप इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये आपके पहले ही पेयर है, तो आपको एक बार ही पेयर करना है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार पेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपके ये पेयर हो गए। नाउ यू हैव टू राइट द मिन टर्म्स, आपको क्या करना है मिन टर्म्स को लिखना है।
यू हैव टू राइट द मिन टर्म्स। तो यहाँ पे देखेंगे आप मिन टर्म को कैसे लिखना है। नाउ ए डैश इज देयर, ए डैश इज देयर, सो वी विल राइट ए बार। ए डैश हमने लिख लिया, ए डैश यहाँ पर क्या है आपका ए डैश है, बोथ ऑफ दिस कंटेन ए डैश, यहाँ पर दोनों आपके क्या कंटेन करते हैं, दोनों ब्लॉक्स के अंदर आपका क्या है ए डैश है। नाउ व्हाट विल वी टेक, वी हैव बी डैश सी एंड बी सी, व्हाट विल बी टेक हेयर, यहाँ पर आप क्या लेंगे, दैट विल नॉट चेंजिंग, जो आपका चेंज नहीं कर रहा है दैट विल बी टेकन हेयर, जो आपका चेंज नहीं करेगा दैट विल बी टेकन। सो हेयर वी विल टेक ए डैश एंड सी, हेयर वी विल टेक ए एंड सी, बिकॉज बी डैश इज चेंजिंग फ्रॉम बी, जीरो से आपका बी क्या हो गया 1 हो गया, सो वी विल नॉट टेक बी डैश, हेयर वी विल नॉट टेक बी डैश, बी डैश को हम नहीं लेंगे बिकॉज बी डैश इज चेंजिंग हेयर। So from this block we are taking a dash, from this block we are taking a dash which is not changing and which is not changing from b dash and c to bc। तो आपका क्या चेंज नहीं हुआ, c will not change, जो आपका चेंज नहीं होगा that will be placed। और उनको किसकी फॉर्म में लिखना है, हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द सोप फॉर्म, वी आर फाइंडिंग द सोप फॉर्म। तो हमें क्या करना है, पहले प्रोडक्ट लेना है। Here every block will give you a product form and then we will sum all the blocks, और सभी blocks को हम क्या कर देंगे, sum कर देंगे। Now यहाँ पर आपका क्या हुआ, here a is not a change, a dash is not changing in from moving this block to this block। इन दोनों blocks के अंदर आपका कौन सा सेम है, a dash सेम है आपका, और दूसरा क्या है c सेम है, b is changing from b dash to b, so we will not take a b। so first term, our first min term will be a dash c। now for the second min term we will take this, इसके लिए हम लेंगे for the second term हमारी क्या होगी आपकी, we will take this block, in this block, in this two blocks we are not changing a को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, so we will take a here and what is not changing BC to BC, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में जाते हुए आपका क्या चेंज नहीं हो रहा, B से B एज इट इज रह रहा है, बट C डैश इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट टेक C को हम नहीं लेंगे, ओनली B विल टेकन। और कौन सा B लेंगे, B लेंगे अब, क्योंकि B और B सेम है यहाँ पर, तो जो आपका सेम होगा दैट विल बी टेकन। सो फ्रॉम हेयर वी विल टेक A, इससे आप क्या लेंगे A लेंगे, और इससे आप क्या लेंगे, यहाँ से आप क्या लेंगे B वी विल टेक, तो AB। सो दूसरी टर्म आपके पास क्या आई, AB आई, सो वी विल प्लेस हेयर AB। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस के मैप, ये आपका क्या हो जाएगा, इस के मैप का सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ इफ वी डू once more again, this is a dash, this is a, this is b dash c dash, this is b dash c, this is b c, this is b c dash। now we place the this is 0, this is 1, this is 3, this is 3, this is 2, this is 4, this is 5, this is 7 and this is 6। now place the मिन टर्म्स, हमें मिन टर्म्स लिखनी है, और मिन टर्म्स किसकी फॉर्म में लिखेंगे, 1 की फॉर्म में लिखेंगे। सो वी विल प्लेस 1 की जगह पे हमने 1 लिख दिया, एंड देयर इज अ 3, वी विल प्लेस 3, देयर इज अ 6, वी विल प्लेस 1, दिस देयर इज अ 7, सो वी विल प्लेस हेयर। नाउ वी विल मेक द ब्लॉक्स, हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। ब्लॉक्स कैसे बनाना, 8 का ब्लॉक अगर मैक्सिमम बना सकते हैं तो उसका बनाएंगे, अगर 8 का नहीं बन रहा है तो 4 का बनाएंगे, 4 का नहीं बन रहा है तो आपको 2 का बनाना है। सो हेयर देयर इज ए ब्लॉक ऑफ 2 का ब्लॉक आपका बन रहा है, एंड 1 ब्लॉक इज दिस, तो आपको ये ब्लॉक बनाना है। नाउ फ्रॉम दिस विच वी विल टेक, जो चेंज नहीं होगा आपका वो लेना है। सो इन दिस 2 a डैश इज सेम, एंड इन दिस 2 b डैश इज चेंजिंग फ्रॉम b to b dash to b, so we will not take b। there is a c which is not changing, so we will take c। now प्लस करना है दूसरे ब्लॉक से, a is not changing, a आपका चेंज नहीं हुआ है, so we will take a, and in this block, in this 2 block b is same and c is changing, c आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, so we will not take c, so here we will take b। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, a b। so आपका क्या हो गया, दिस विल बी योर सोप फॉर्म, ये आपकी क्या हो गई, सोप फॉर्म हो गई फॉर दिस, इसके लिए। इज दैट क्लियर? नाउ
Move to the next example. This is a k map for 3 variable. This is a k map for 3 variable. Now we will do the k map for 4 variable. We will do. Now this is the example for the 4 variable k map. ये आपका 4 variable k map के लिए है. Here 4 literals are given p q r s and this is the SOAP form. ये आपकी क्या है, SOAP form है and these min terms are given to you. Now you have to write the boolean expression for this min terms. इसके लिए, इस function के लिए आपको boolean expression को लिखना है. Now what the values we are giving here, this block is representing 0, this is representing 1, this is representing 2 and then 3, this representing 4, this is representing 5, this is representing 7, this is representing 6 and this is representing 8, this is representing 9, this is representing 10 and this is representing 11. ये आपका 11 represent कर रहा है. Now what is this? This is representing 12, this is representing 13, this is representing 15 and this is representing 14. Now how we get this? हम ये किस प्रकार से लेके आए? All these 4 are 0, so value 0 0. इस वाले ब्लॉक की वैल्यू क्या आई? 0 0 0 1, तो क्या आ गया 1. यहाँ तक तो हमने पीछे वाला भी कर लिया था. ना वाई दिस 12 इज अपसाइड फ्रॉम द 8 से पहले कैसे आ गया? नाउ टेक दिस, वी हैव 1 0, हमारे पास क्या है 1 0, सो वी आर टेकिंग पी क्यू फ्रॉम हेयर एंड क्यू आर एस हेयर. सो 1 0 वी आर टेकिंग, 1 0 हमने ले लिया यहाँ पे और आर एस की वैल्यू क्या है 0 0. सो इफ़ वी डू दिस फॉर दिस ब्लॉक, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 8, सो देर इज़ 8. यहाँ पर आपका क्या हो गया? 8 हो गया. नाउ यू कैन लुक एट ईजिली, बड़े ईजिली आप देख सकते हो आपकी किसकी वैल्यू क्या है. नाउ इस ब्लॉक का देख लेते हैं. वाई दिस, व्हाट इज दिस ब्लॉक? दिस इज 1 1 1 1. ये आपका क्या है? चारों 1 है, तो इसका मतलब क्या है? दिस ब्लॉक इज 15. नाउ वाई वी आर प्लेसिंग दिस, वाई वी आर प्लेसिंग दिस 3 बिफोर 2. दिस इज एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर आपको बता दिया गया है. क्या था फिर भी बता देता हूँ आपको. फ्रॉम मूविंग 1 ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक वी कैन ओनली चेंज 1 लिटरल. आपको केवल एक ही चेंज लिटरल के अंदर चेंज करना है, अदरवाइज यू विल नॉट प्लेस दैम, अदरवाइज आप प्लेस नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ द कंसेप्ट. नाउ प्लेसिंग द मिन टर्म्स, जो आपको मिन टर्म्स दी हुई हैं उनको प्लेस करते हैं. नाउ 0 0 इज़ अ मिन टर्म, so we will place here. 2 is also a min term, so we will place 1 here. Now 5, this is a min term. Now this is 7, this is also a min term. Now 8, this is a min term. Now 10, 10 is here, so is a min term. This is 13, 13 here, so it is a min term. Now 15, 15 is here, so this is a min term. Now what you have to do? You have to make the पेयर्स. आपको पेयर बनाने. 8 का पेयर आप देखोगे 8 का पेयर नहीं बन रहा होगा. देयर इज नो पेयरिंग फॉर 8. 8 के लिए आपकी पेयरिंग नहीं है. नाउ यू विल लुक फॉर 4 की पेयरिंग. 4 की पेयरिंग आप देखेंगे. यस, देयर इज अ पेयरिंग ऑफ 4. 4 की पेयरिंग आपके पास है. 4 1s एक साथ हैं आपके, तो यू विल पेयर देम. आपने इनको पेयर कर दिया. नाउ देयर इज़ नो मोर पेयरिंग फॉर 4 लिटरल्स. 4 लिटरल्स के 4 के साथ आपकी कोई पेयरिंग नहीं है. नाउ यू विल लुक फॉर 2. क्या दो आपके ब्लॉक्स पेयर हो रहे हैं? नाउ यू विल सी दैट देयर इज़ नो पेयरिंग. यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है. देन इफ़ देयर इज़ नो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है. क्या हुआ? दिस इज़ पेयर्ड विद दिस, दिस इज़ पेयर्ड विद दिस. ये एक साथ पेयर हो रहे हैं. दिस इज़ पेयरिंग, 1 पेयरिंग एंड दिस इज़ आल्सो ए 1 पेयरिंग. ये आप कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ एज्यूम्ड दैट के मैप इज़ कनेक्टेड. के मैप आपका क्या है? कनेक्टेड है. एवरी ब्लॉक इज़ कनेक्टेड, यानी कि आप इस ब्लॉक को यहाँ पर भी रख सकते हैं. दिस ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड हेयर, यहाँ पे रखा जा सकता है. दीज आर कनेक्टेड, यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर आप बना सकते हो इसको. सो दीज आर द पेयरिंग हेयर. सो वी हैव 1 and 1 block is this and this and this. These 4 corners are same. यानी कि अगर आप यहाँ पे रखते हो इसको, इफ़ यू प्लेस हेयर, इस वाले पूरे ब्लॉक को रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1. यहाँ पे नहीं है, दिस 2 आर नॉट प्रेजेंट. सो नाउ यू कैन प्लेस दिस हेयर. इसको भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. सो इफ़ यू कैन इमेजिन दैट
दिस फोर ऑल फोर्स आर आल्सो द पेयरिंग, ये एक पेयर बना रहे हैं फोर का। सो दो का पेयर हमें नहीं देखना है, फोर का पेयर प्रेजेंट है। सो देयर इज वन दिस पेयर, दिस इज वन पेयर, जो मैंने किसके साथ बनाया हुआ है, दिस पिंक, पिंक के साथ, पिंक कलर के साथ जो बनाया, ऑल दीज आर मेकिंग वन पेयर, ये सारे के सारे एक पेयर बना रहे हैं। बिकॉज के मैप इज कनेक्टेड, के मैप को हम क्या मान के चलते हैं, कनेक्टेड मान के चलते हैं। दैट्स वाई दिस आर मेकिंग वन ब्लॉक। अगर यहाँ पे वन होता और यहाँ पे वन होता, वी कैन मेक दिस, हम इस प्रकार से भी बना सकते थे। इज दैट क्लियर? सो देर आर टू ब्लॉक्स वी मेड, हमने दो ब्लॉक्स बनाए हैं यहाँ से। नाउ वी विल लुक विच आर नॉट चेंजिंग इन दिस ब्लॉक। इफ वी आर मूविंग हेयर दिस फ्रॉम दिस ब्लॉक टू दिस ब्लॉक, P is changing from 0 to 1, so we will not take P, but Q is same। अगर आप इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर और इस ब्लॉक के अंदर अगर Q की वैल्यू को देखेंगे, दैट इज 1 फॉर एवरी 4 ब्लॉक्स। इन चारों खानों के लिए आपका पी क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है। बट इस खाने के लिए आपकी पी की वैल्यू आपकी 0 है और इस खाने के लिए आपकी पी की वैल्यू क्या है, 1 है। सो वी विल नॉट टेक पी इन आवर एक्सप्रेशन, पी को हम अपने एक्सप्रेशन के अंदर नहीं ले सकते हैं, और किसको लेंगे, क्यू को लेंगे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू आपकी 1 है, सो इट विल टेक एज क्यू। नाउ पी और क्यू में से हमने देख लिया। नाउ लुक फ्रॉम द आर एंड एस, आर एस में से कौन सा लेंगे। नाउ इफ वी आर लुकिंग इन द पेयरिंग इन 4 ब्लॉक्स के अंदर आपका कौन सा, आपका आर और एस में से कौन सा चेंज नहीं हो रहा है। नाउ वी कैन सी दैट हेयर, हम देख सकते हैं हेयर आर इज 0, आर इज 0 हेयर, बट हेयर आर इज 1, हेयर आर इज 1। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 और 1 है, और यहाँ पे क्या है, 0 और 0 है। सो आर इज चेंजिंग, आर क्या कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है। सो वी विल नॉट टेक, हम आर को नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज आर इज चेंजिंग, आर आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। या सिंपली आप ऊपर से भी देख सकते हो, आर इज, आपको ये लेना है, ये 2 ब्लॉक्स लेने हैं। व्हेन यू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो आपका क्या कर गया, आर चेंज कर गया, बट क्यू रिमेन्स सेम। क्यू आपका क्या है, सेम, सॉरी एस आपका सेम है, एंड एस विल रिमेन सेम। तो एस आपका सेम है, सो वी विल प्लेस हेयर एस। तो हमने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, एस प्लेस कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म, ये आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है। नाउ वी हैव वन मोर ब्लॉक, हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसके अंदर हमने पेयरिंग कर रखी है। दिस इज व्हाट इज दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक। नाउ लुक एट दिस, वी आर गोइंग फ्रॉम दिस ब्लॉक टू दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक से हम इस ब्लॉक के अंदर गए। सो वी कैन सी दैट P इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, P आपका क्या हुआ, 0 to 1 हो गया, बट Q इज 0 एंड 0 इन बोथ, इन दोनों लाइंस के अंदर। अगर इस लाइन के अंदर अगर मैं देखूं और इस लाइन के अंदर देखूं, तो P तो आपका क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 हो गया। सो वी कैन नॉट टेक P, बट Q इज 0 हेयर एंड Q इज 0 हेयर आल्सो, सो वी कैन टेक Q। हम क्या ले लेंगे, Q को तो एज इट इज ले लेंगे, बट वी विल टेक Q बार, बिकॉज वैल्यू ऑफ Q इज 0 हेयर। तो Q की वैल्यू आपकी क्या है, 0, सो वी विल टेक Q डैश। नाउ हेयर Q हमने ले लिया। नाउ लुक एट फॉर द R और S, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ब्लॉक के अंदर और इस ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे आपकी R की वैल्यू क्या है, 0, एंड यहाँ पर आपकी R की वैल्यू क्या है, 1, बट S इज 0 हेयर एंड S इज 0 हेयर। तो S आपका सेम है, सो वी विल टेक S, हम S को लेंगे। जो चेंज कर रहा है उसको नहीं लेंगे, जो चेंज नहीं कर रहा उसको लेंगे, एंड वी विल टेक S, एंड द वैल्यू ऑफ S इज 0, सो वी विल टेक S डैश। हम क्या लेंगे, S डैश, सो वी विल टेक S डैश। नाउ देर इज ए प्लस बिटवीन देम बिकॉज वी आर डूइंग सो परफॉर्म, हम क्या कर रहे हैं, आपकी सो परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस विल बी यूअर सो परफॉर्म ऑफ दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल की आपकी क्या हो गई, सो फॉर्म हो गई। सो इन दिस लेक्चर वीडियो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द के मैप फॉर मिन टर्म्स। मिन टर्म्स के लिए हमने किया है फॉर 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द के मैप फॉर द मैक्स टर्म। मैक्स टर्म के लिए हम के मैप को करेंगे। सो वॉच द वीडियो कंटिन्यूसली।
Thank you students, have a nice day and please subscribe and share the channel more and more.